हाँ, बिल्कुल। ये राब्ता मिल्लत के किरमानी साहब, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। गुलपोशी ख्वाजा पटेल, अरे आपके लिए ज़रूरी है इसका नॉलेज। खाली ये यहाँ पर इंडिया में ये चीज़ नहीं है, लेकिन अमेरिका वगैरह में बच्चों को उनके जो टीचर्स होते हैं उनको उनकी ट्रेनिंग होती। ये सारे चीज़ों से टीचर्स को वाकिफ़ होना ज़रूरी रहता। और ख़ास तौर पे पढ़ने वाले बच्चे जो टीन एज होती जिसकी, उनको ये जो डॉक्टर साहब के जो बातें हैं उसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। आप बाद में समझेंगे इसको इंशाल्लाह। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करती संजू रेड्डी। Good afternoon, everybody. So today we are myself and Dr. Sanju Talpalikar and Dr. Raghavendra. We are going to discuss about the drug. The other name of drug nowadays is substance. So उसका अलग नाम जो है substance है आजकल. So we are going to discuss about the usage in India and all over the world also, and its ill effects to the body, human body and brain, to the family, to the society, to the friend circle, and other things also we are going to discuss today. So what are these drugs or substances? So drugs are chemicals. They are the chemicals that alter and block or mimics chemical reaction in the brain. They mimic chemical reaction in the brain which causes alteration in the normal body process, causing physical. Physical means the heart rate will increase and person will have deep respiration, and mental problems will be there. Elevated mood will be there. New thought processes. So mental changes are also seen and physical changes are also seen. Next slide. So what is addictive substance? Addictive substance that alters mood or body function and is a habit forming. So legal drugs available are alcohol, tobacco, and illegal drugs cannabis, heroin, opium peptides, and prescription drugs like cups, syrups. No, previously. Next ಮಾಡಿದ್ರೆ cough syrups, benzodiazepine. Next slide. So now coming to the tobacco, dear friends, everybody knows tobacco how harmful is to the body. So tobacco is considered as one of the major risk factor for heart attack, for stroke, that is paralysis, one for lung cancer, other things also. So it is among the major six risk factor considered to be, it is considered to be major 6 factors. The other factors are of course hypertension, diabetes, obesity, physical, but this is also one of the major risk factor for heart attack and paralysis, stroke, that is. So tobacco kills up to half of all users, and now tobacco use kills 54 lakh million people a year. That is average 1 in 6 seconds. Average 1 in 6 seconds means somebody has died because of heart attack because he is a smoker. Somebody has died because of paralysis, he is a smoker.
So 1 in 6 seconds, the death rate is because of tobacco is 1 in 6 seconds. And 1% of adults worldwide. It is a risk factor. I told you it is a risk factor for 6 of the 8 leading causes of death in the world. And smoking reduces, in the men, smoking reduces medium survival life 8, that is 5 to 11 years. For women, and 6 years, 5 to 7 years, it reduces the survival of life for men. So tobacco consumption prevalence, how much is the prevalence? Prevalence means how much incidence is there, rate is there in India. So it is 35% of adult in some form. And friends, everybody knows tobacco, it is in the smoke form or it is in the non-smoke form. So smoke form, 21% of adults use only smokeless. They are smokeless tobacco, chewing pan, zarda and all things. And 9% use smoked tobacco and 5% both. Tobacco use is very high, 18% even among population age 15 to 24 years. Next slide. So now coming to the alcohol, this is another problem in we are facing now, alcohol abuse, alcohol dependence. So 20 to 75% of adults take alcohol. The incidence is 25 to 75%. And prevalence is highest in northeast states and least in the Gujarat. Next slide. And Indian scene, alcohol ever uses among men vary from 25 to 75%. And the dependence on alcohol is 3%, 3% overall, and male it is 5% and female it is 0.5%. The mortality means death. Death because of alcohol is 12% of total deaths. So extent of drug abuse. So what is the extent of drug abuse prevalence, that is? So current scenario is about 2.1% of the Indian population use opioids, heroin and pharmaceutical opioids. About 2.8% of Indians between the age of 10 and 75 years were consumers of cannabis in the form of that cannabis means bhang, ganja and charas. Around 50.8 million children aged between 10 and 17 years addicted to substance in India. 15 means 1 crore 58 lakhs. 1 crore 58 lakhs aged between 10 and 17 years are addicted to substance, that is drug, in India. Next slide. So states which has got the highest cases of drug abuse, highest percentage of rural, that is most seen in Goa, that is 78%, and Punjab, that is 77.5%, and urban area maximum it is seen in Mizoram and Meghalaya is 91 and 90.7%. Next slide. And states with previous slide. State with highest cases of drug abuse, highest percent of drug abuse is over. Next slide. So prevalence of opioids, the most frequently used opioid is heroin, that is 1.14%, followed by pharmaceutical opioids, that is 0.96%, and then opium 0.52%. And more than half of the opioid users are located in states like Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Delhi, Maharashtra, Andhra Pradesh and Gujarat. In terms of population percentage, Mizoram, Nagaland 6.5%, Arunachal Pradesh, Sikkim, and has got the highest opioid users. Next. Sedatives means sleeping medicines, sleeping tablets and inhalants. About 1.08 of 10 to 75 years old, they take sedatives. Either it is doctors prescribed or non-doctor prescribed, non-prescription use. And top state in terms of sedatives are Sikkim, Nagaland, Manipur, Uttar Pradesh, Maharashtra, Punjab, Andhra Pradesh and Gujarat. So cocaine, amphetamine and other stimulants and other hallucinogens, it is very low in prevalence in India is there. Next. So effects of drug abuse, health effects. So what are the health effects? Health effects of drug abuse, it causes mental health disorders, HIV infection, hepatitis, that is liver problem. Hepatitis is a jaundice, related liver cancer, and cirrhosis. Again, end stage liver disease is called cirrhosis. Overdose and premature death also. Next. So key measures to tackle drug abuse. So Nasha Mukt Bharat campaign to tackle drug abuse through the institution as well as community support. Say no to drugs publicity campaign across schools and other education institutes. Setting up de-addiction centers in districts where the drug or substance prevalence or incidence is high in India. Next slide. The next, 1 month. So coming to the another some more knowledge about the drug addiction. It is a very important sentence. Addiction is not about using drugs. It is what drugs does to your life.
So it is not about using drugs, it is what drugs to your life. Next slide. So introduction to the drugs, it affects their health, their family, their career, and their family relationship, friends, and the community. Next. So you can see here, these are the stages: stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 of drug users. Stage 1, stage 2, first slide, next slide. Stage 1 is curiosity. लेना नहीं लेना, लिए तो क्या होता, नहीं लिए तो क्या होता, मैं उससे क्या है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मेरे क्या करता है, क्यूरियोसिटी, कितना दम है इसमें, देखेंगे. So curiosity and learning to trust or mistrust the drug use. Trust, mistrust, and again high, feeling high, that is a feeling, कितना मजा आता है देखने के लिए. Stage 2, user, the person who takes drugs is thinking more about drugs. सोचता हूँ ना, क्या कितना दम होगा इसमें, क्या है. Previous relation becomes difficult, and when he is alone, he thinks of using drugs, and user still thinks they have control. Third stage, seeking out of high से seek out, बाहर आता हो, तो high नहीं होता हो. His confidence, still has confidence in using the drug, but user think the drug won't harm them. अभी भी harm नहीं करता, सोचता. Peer group, peer means friends, circles, same age groups, friend circles. So peer age group users. Fourth stage. So this is a dependent stage. Depend means you are dependent. Without drug, your life cannot move. Dependent. So what can no longer get high? No high. User uses a drug to avoid being sick. बीमार नहीं गिरना बोल के लेने शुरू करता. पहले मजे के लिए लेने चाहता, बाद में जो है बीमार नहीं गिरना बोल के लेना शुरू करता. Drugs become the center of their life. This is a stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Next slide. So what are the top drugs users in India? Marijuana, heroin, cocaine, alcohol, tobacco, LSD, speedball. That detail Dr. Raghavendra will tell during his next talk. And side effects: loss of appetite, bhook nahi lagta, headache, anxiety, elevated blood pressure, high blood pressure, chest pain, I told you, heart attack, irregular heartbeats, cold bluish fingers, difficulty in urinating, changes in body temperature. Next. Consequences of drug addiction. सूरत देखिए, पहला कैसा हुआ, बाद में कैसा होगा. So drugs are chemicals. I told you they are the chemicals. Different drugs, because of their chemical structure, can affect the body in different ways. In fact, some drugs can even change the person's body and brain in ways they last long after the person has, even after stopping the drug also, their face becomes, either they become permanent or they may recover also. Next slide. So the drug users, they are very high risk of bad outcomes, that is the unintentional injuries, accidents, risks of domestic violence, medical problems, and death. Effects on brain. So they are the chemicals, how does it affect the brain? So all drugs abuse, nicotine, cocaine, marijuana, others, they affects the brain reward circuit. There is in the limbic system of the brain, there is a reward circuit. So drugs or substances hijack this reward system. They hijack the reward system, causing large amount of inflow of dopamine to flow the system. This dopamine causes high or euphoria feeling. Euphoria means very good feeling, very high feeling, associated with drug abuse. So behavioral problems: paranoia, restlessness, depression, aggressiveness, किसको मारूं, किसको तोड़ूं, aggressiveness, hallucinations, addictions, impaired judgment, impulsiveness, loss of self-control. Next. So even the pregnant lady also, they will have stillbirths and abnormal babies also after pregnancy, abnormal births, baby births. Next slide. Next. This is very important slide. Morning only I got it. Very, very important graph. Somebody is taking drugs. I am ready for hell. Hell. I am ready for hell. Next, last slide. Next. Same slides. Next. Last 3 slides. So raise your voice. June 26 is the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking.
First slide. Next slide. Raise your voice. Then again. Don't experiment. Don't experiment with the drugs. It is a very bad decision. I told you stage 1, stage 2, stage 3. Say no to drugs and alcohol. Your future, our choice. See, alcohol, cigarette is there. This is very important. Just say no. If your friend is forcing, no, I don't take. No, you should tell. Your eyes should go in the friend's eyes. No. No means no. Don't tell, no, I don't take, like that. You should say no. You should learn how to say it strongly. You should know how to say no. That is very important. United we stand for a drug-free nation. So, before concluding my talk, I want to share my two experiences during my 25 years of my practice. I will tell in Hindi. तो एक फैमिली है मेरे पास, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है, ये बहुत ही इमोशनल स्टोरीज रहते हैं लोगों के. तो फैमिली आई हैदराबाद में, जो है बीदर से हैदराबाद को काम करने गए. तो आए, एक बच्चा एक बच्ची, हस्बैंड वाइफ आए. तो क्या काम करते हैं, मैं बोला बीदर से गए सर, उधर पानपुरी का धंधा कर रहे और जो है सवेरे दूध बेचते बोले. तो बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा चल रहा. कितने बजे उठते? 4 बजे उठते. क्या क्या दूध बेचते, क्या क्या सर? प्लॉट लिए हैदराबाद में. बच्चे इंग्लिश स्कूल में है. बच्ची गुड मॉर्निंग सर बोल रही, गुड मॉर्निंग डॉक्टर. बच्चा बोल रहा गुड मॉर्निंग डॉक्टर. अरे बहुत अच्छा है बोल. सर क्या के लिए है? सर हस्बैंड पीना शुरू करा बोल. नहीं मत पियो बोल. नहीं सर पी रहा हूँ. तो उसको जो भी खसम खिला का, गॉड का, इसका, बीबी का, बच्चों का, जिसका भी खसम खिला के मत पियो बोल के, उसको लीवर खराब हो रहा फर्स्ट स्टेज में बोल के भेज दिया उसको. तो बाद में जो है जाते वक्त बच्चे बोल रहे सी यू डॉक्टर. 3rd स्टैंडर्ड में है बच्ची, 6th स्टैंडर्ड में है बच्चा. सी यू डॉक्टर, सी द एंथुसियास्टिक. फैमिली में पैसा शान है, पैसा है, बच्चे उठ रहे, प्लॉट ले रहे, हैदराबाद में सेटल हो रहे. सी यू डॉक्टर. ओके सी यू बेटा, सी यू बोल. 1 साल तक बाद में नहीं आए. 1-1.5 साल के बाद लेडी आई 2 बच्चे लेके, हस्बैंड नहीं है. तो पूछा क्या हुआ मैम, क्या हुआ? सर एक आपका आप सुने नहीं बात. वैसे ही पीते गए, दवाखाने फिरते गए. 60-70 लाख रुपए चले गए. बच्चों का स्कूल छूट गया. मैं जो है सवेरे जो है सब्जी बेच रही हैदराबाद में, और बच्चा दूध बेच रहा, और बच्ची जो है घर में खाना बनाती. दोनों के स्कूल खत्म हो. दूसरा एग्जाम्पल, 50 ईयर्स एक आदमी आया, लड़का साथ में है. उसका हिस्ट्री कुछ वेग लग रहा था, कुछ तो ऐसा करता वैसा करता, मारता तोड़ता. क्या बोला ड्रग्स लेते क्या? हाँ सर बहुत ड्रग्स लेता. बोला सर कभी कभी माँ को बाप को भी, मेरे को भी मारता. बोल के मैं इमोशनल हो गया एकदम. माँ बाप को मारता. बोल. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है नहीं लेना बेटा, उसको भी खसम बिसम दिलाए, सब करे. तो बाद में जो है मैं चाय पीने ऊपर गया, घर में गया, नीचे क्लिनिक है, ऊपर गया. तो खिड़की में से देखे तो क्या है, 15-20 लोग जमा हो गए उधर. जमा होने के बाद मैं नीचे जाके पूछा क्या हुआ यार? नहीं सर वो गाड़ी जो है बच्चा चला, तुम बोल रहा है, फादर बोल रहा तुम बच्चा चला, तू ड्रग्स लिए सो मैं चलाता हूँ. तो बच्चा जो है बाप को रोड पे मारा, उसको रोड पे ही फादर को मारा उन्हें, मैं गाड़ी चलाता हूँ. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है. देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स विच फैमिलीज आर डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ वन मैन मिस्टेक. एक आदमी की गलती की वजह से फैमिली पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाती. जो कमाने वाले ही नहीं है, जो काम करने वाले नहीं है, तो क्या करेंगे? खत्म हो जाता, फैमिली खत्म होता, सोसाइटी खत्म होता, पूरा बच्चों का कैरियर पूरा खत्म हो जाता. तो ये जो अल्कोहल, ये जो सिगरेट स्मोकिंग है, बहुत इट इज़ वेरी बैड. कभी कभी आप लोग देख भी नहीं सकते, सर्जरी के बाद आदमी अपना खुद का चेहरा आईने में नहीं देख सकता, इतना वेरी बेकार रहता है. सो बिफोर कंक्लूडिंग, definitely I would really very thanks to Dr. Khadir, chairman Shaheen Group of Institution, who really has initiated against drug abuse in the upcoming city like this. I think we should give him a big hand. He is not here. And other Shaheen Group of people. And next before ending my talk, I am very glad that Dr. Raghvendra has accepted he has accepted to give a talk today. So he is a doctor who has seen most of the drug cases in Bidar. Over to Dr. Raghvendra. Please.
Yes. Yes. My dear friends, so today we are discussing on a important topic which is very relevant to especially the young population, youth population, because now sir has discussed about drug addiction in detail, how much the drug use has caused significant problem in our country, in all over the states. And sir has given two major examples, live examples, which has caused severe impairment in their family. Sir has said that with one person who has done only one mistake, I mean, the person's mistake is from the one side, but the whole family suffers. So such a severe problem in our society we are discussing. And as you know, that drug addiction is not only in metros and all, even it is in the smaller cities at even bidar level, सब तरफ है, drug addiction is everywhere. It is सोसाइटी में है, मार्केट में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, बार में है, सब तरफ है ड्रग एडिक्शन. ओनली थिंग हमको मालूम नहीं है. मगर जो आज का टॉपिक है, सर बोले, कदीर सर और शाइन ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी जो इनिशिएशन लिए हैं ड्रग फ्री बिदर बोल के, क्यों ले रहे हैं कि बिकॉज वो ड्रग एडिक्शन जो है यंग पॉपुलेशन में प्रिविलेज ज़्यादा होके जो उनका स्टडी पैटर्न है, उनको आगे जाने का है, वो खराब हो रहा है. सी इनिशियली आई विल गिव एन एग्जांपल कि एक 10th में अराउंड 96% जो है बच्चा था वो, ओके, फ्रॉम बिदर का है. वो उसके कॉलेज जाने लगा. उसके बाद में उसके जो फ्रेंड्स थे, उसके कॉलोनी के जो फ्रेंड्स थे, उसके साथ उसका फ्रेंडशिप शुरू हो गया. मैं उनसे मिलते गया. उसके बाद में उसने गांजा लेना शुरू कर दिया. बच्चे बोले कि उसके फ्रेंड जो साथ ही रहते थे, देख के ट्राई कर ले. सो एक बार लिया, 2 बार लिया. अभी पीयूसी साइंस बोले तो प्रेशर बहुत रहता ही है, नींद नहीं होता है, पढ़ना रहता है, स्ट्रेस होता है, मार्क्स कम पढ़ते हैं. सो देन ही स्टार्टेड टेकिंग गांजा, स्मोकिंग. गांजा हो गया. उसके बाद में 2 दिन 3 दिन घर को आता ही नहीं है, वो वहाँ पर पड़ गया. तो इसके कारण से गांजा एडिक्ट हो गया, कॉलेज जाना बंद कर दिया, डिप्रेशन में चला गया. सडनली वे एक बार उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, हाथ को मार के आया था. तब पेरेंट्स मेरे पास लेके आए थे. सो पेरेंट्स को भी मालूम नहीं है क्या कर रहा है बोल के. सो देन इनडायरेक्टली वी डिड यूरिन टेस्ट फॉर कैनबिस, तो वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो डिनाई कर रहा था, मैं कुछ भी नहीं ले रहा बोल के बोल रहा था. फिर बाद में यूरिन टेस्ट करने मालूम पड़ा, उसको रिजल्ट बोले हमने तुम ये ले रहे बोल के, तब उसको कन्फ्रंट करें तो एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ऐसा ले रहा हूँ बोल के. सो हम देखते रहते हैं हमारे सोसाइटी में, जो बच्चा बहुत पढ़ाई करता है, अच्छा है पढ़ाई करता है, सडनली वो चेंज हो जाता है, बिहेवियर में चेंज हो जाता है. So one of the cause, there are many other causes. One of the causes is drug addiction. So we should aware of what is going through in the students, especially for the teachers, for like us. So whenever the student is very brilliant and suddenly he stops coming to the college and there is a significant decline in his profession, so then we have to think in terms, probably he is going through drug addiction, or it can be depression, or in any kind of mental health issues. So so after giving these examples, I'll go through in brief. So as sir said, the ड्रग बोले तो क्या है, वो ड्रग लेने के बाद अपने बॉडी में और माइंड में देयर शुड बी सम चेंजेस इन होता है, उसके कारण से देयर विल बी ए बिहेवियरल प्रॉब्लम्स. सो देयर आर लीगल ड्रग्स, अल्कोहल टोबैको, मतलब कि आप अल्कोहल टोबैको ले तो पुलिस नहीं पकड़ते हैं, मगर इफ यू आर यूजिंग गांजा, कैनबिस और हीरोइन,
और एनी अदर ड्रग्स एंड विद प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, मतलब जो डॉक्टर लिखे रहते हैं, एक बार कोरेक्स सिरप लिखे हुए उस कॉफ के लिए बोले तो पहले, अभी क्या होता है वही प्रिस्क्रिप्शन यूज करते करते जाते हैं। जैसे स्पाज्मोप्रॉक्सिवन कैप्सूल है, ब्लू कलर के कैप्सूल, हाँ, सो हमारे बिदर में तो बहुत रैम्पेंट है वो ब्लू कलर कैप्सूल, स्पाज्मोप्रॉक्सिवन या कोरेक्स सिरप। डॉक्टर कभी तो पहले रखे थे पेन एब्डोमेन के लिए अगर लिखे रहते, मगर वो उससे आराम लगता बोल के बार बार वही लेते रहते। तो लेते लेते क्या होता, दिन में 10 गोलियां, 20 गोलियां, 40 गोलियां भी लेते हैं लोग। सो दैट ड्रग एडिक्शन होता है। अगर वो 10 कैप्सूल नहीं लिए तो उनको एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाता है, बेचैन बेचैन शुरू हो जाता है, उसके कारण से बिना गोली से नींद भी नहीं कर सकते। सो सच ए काइंड ऑफ ड्रग एडिक्शन बिदर में भी है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का। नेक्स्ट, सो अभी जो टॉपिक है यंग पॉपुलेशन के लिए क्यों है, कि बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए क्यों है, बिकॉज दिस इज द वेज ट्रांजिशन फ्रॉम टू स्कूल टू कॉलेज इज ए क्रिटिकल पीरियड एंड स्टार्टिंग पॉइंट। जब आप 10th तक पढ़ते रहते हैं, प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ते रहते हैं, इट इज़ लाइक आपको घर में वातावरण में रहता है, सब लोग सुपरविजन में रहते हैं। जब आप कॉलेज आने शुरू हो जाते हैं, देन स्टार्ट्स दी आइडेंटिटी क्राइसिस, वेयर यू पीपल हैव, यू नो, आपको लगता है मैं यंग बड़ा हो गया, अभी मेरा नाम बनना है। सो उसके बाद में क्या होता है कि सर बोले से आपको क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कौन से भी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट। अरे दोस्त सिगरेट से ले रहा, मैं भी लेके ट्राई करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करना है, क्यूरियोसिटी बढ़ता है। वो लेके कैसा फील मैं भी फील करना चाहता हूँ। सो द क्यूरियोसिटी, द एक्सपेरिमेंटेशन वो शुरू हो जाता है। तो देल एवरीबडी इवन टेंशन, अब हमारे पास आते हैं कि पेरेंट्स लेते हैं, मैं बोलता हूँ सर आप बच्चों को क्या तो स्ट्रेस है क्या बोलकर, पेरेंट्स सर गुस्से में आ जाते हैं, सर इसको क्या टेंशन रहता है, क्या खाना पीना है, क्या कमाना है, क्या टेंशन है उसको बोलते। बट एवरीबडी हैज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर्स। पीयूसी में साइंस में पढ़ रहे तो डेफिनेटली देयर भी एकेडमिक प्रेशर रहता है, किसको 90% बच्चा होता है, 80% आ गया तो भी टेंशन शुरू हो जाता है, हाँ, या उसको बैच चेंज हो गया तो भी प्रेशर हो जाता है। सो स्ट्रेस रहता है। ऑटोमेटिकली क्या होता है कि स्कूल के अलग फ्रेंड्स रहते हैं, कॉलेज आने के बाद फ्रेंड्स अलग हो जाते हैं, तो वो नया फ्रेंड्स बनाना भी एडजस्ट होना, और स्कूल को, कॉलेज को, वातावरण को एडजस्ट होने के लिए अलग प्रेशर रहते हैं। घर में प्रेशर बहुत रहता है, तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, अलग अलग तरह के प्रेशर्स रहते हैं। नाइबर्स फ्रेंड्स रहते हैं, उनको कंपैरिजन करते हैं, आपके भाई के, बहन को, या अलग अलग तरीके के स्ट्रेस अलग अलग लेवल पे रहते हैं। बड़े लोगों का फाइनेंस का स्ट्रेस रहता है, बिजनेस का स्ट्रेस रहता है, छोटा बच्चे के ऊपर स्ट्रेस रहता है। सो दे विल हैव यूनिक प्रेशर्स एंड स्ट्रेसेस। Reward system is fully functional, but their understanding, decision making capacity and judgment are not mature enough. मतलब कि जो सर बोले सर रिवॉर्ड सिस्टम जो ब्रेन पे रहता है, सर चित्र दिखाए थे कि जो आप यूजुअली क्या रहता है कि आपको गाड़ी चलाते हैं बच्चे, आपको स्पीड चलाए तो बहुत अच्छा लगता है, यू फील वेरी हैप्पी। आप मोबाइल गेम खेलते रहते, खेलते खेलते आप अच्छे पॉइंट्स मार्क्स निकाले तो यू विल वेरी हैप्पी। रिवॉर्ड मतलब वो एक किक देता है, खुशी देता है, मगर वो किक देने के बाद उसको कैसा संभालना वो मालूम नहीं पड़ता। दैट इज दी, उसको इंपल्सिविटी कंट्रोल नहीं होता। मतलब आप गाड़ी चलाते रहते हैं, फास्ट चलाते, खुशी मिलता, अगर आप गाड़ी फास्ट चलने से एक्सीडेंट होता है, मर सकते बोल के जो डर रहता ना, वो डर को कैसा कंट्रोल मालूम नहीं पड़ता। डर रहता, मालूम रहता, फिर भी वो चलाते, एक्सीडेंट हो जाता। वैसे एक बार स्मोकिंग करने से किक जो मिलता है, उसके बाद में किक, स्मोकिंग से आगे कैंसर हो सकता है मालूम पड़ता, मगर उसको कैसा कंट्रोल करना मालूम नहीं पड़ता, बिकॉज द ब्रेन इज नॉट डेवलप्ड एनफ ड्यूरिंग दिस एज। सो उसके लिए कारण से उसके जो जाल रहता ड्रग एडिक्शन में फंस जाते। दे नो अंदर जाने के, बाहर जाने को मालूम नहीं पड़ता है, तो बिकॉज दिस इज द ब्रेन वेयर उनका पूरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। So they are not able to decide risk and the benefit things. So impulse control capacity is very low. मतलब आपको सडनली मालूम, दूसरा दोस्त मेरे को पीना है बोले तो उसको कंट्रोल करना नहीं आता है, they will become very impulsive in this age. So substance use leads to physical problems, health problems, psychologically the anxiety रहता है, depression रहता है, behavioral problems रहते हैं, गुस्सा आना, सर से पिताजी को मारना, ये सब, दूसरे दोस्तों के साथ झगड़ा करना, इवन क्राइम्स। सो दीज आर वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स से ड्रग एडिक्शन से हो जाते हैं। इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, फ्रेंड्स के साथ झगड़ा वगैरह होना, एकेडमिक डिक्लाइन,
90% तो सीधा फेल भी हो सकता है. एंड लीगल प्रॉब्लम्स, बिकॉज क्राइम में आजकल के 40% ऑफ द क्राइम्स आर बिकॉज ऑफ द ड्रग्स. नेक्स्ट. ओके, सो ये इस चीज हो गया कि ड्रग एडिक्शन, क्या क्या ड्रग्स हैं, ड्रग्स कैसा होता है बोल के. सो हाउ डज इनिशिएशन आकर्स, कैसा स्टार्ट होता है ड्रग्स एडिक्शन. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 4 सर बोले जैसा कि देयर इज अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, दैट इज कि आपको कैसे शुरू होता है. फर्स्ट तो फोर दिस पीयर प्रेशर. पीयर मतलब कि आपके फ्रेंड्स, बचपन से जो फ्रेंड्स हैं आपके साथ में है, आपके कॉलोनी में है, उनका इन्फ्लुएंस आपके साथ बहुत रहता है. कॉलेज खत्म होने के बाद वहां पर जाके बैठना, उनके साथ दोस्तों के साथ बैठना वगैरह करना. मगर सभी कुछ बच्चों में बैड लक ऐसा रहता है कि उनके जो दोस्त रहते हैं वो बहुत खराब रहते हैं, कि उनको स्मोकिंग करने का आदत रहता है, ड्रग्स ले ऐसा आदत रहता है. वो लोग क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं कि तू स्मोकिंग करके देख, एक अलग ही मालूम रहता. सो इफ you are having an exam stress and if you go to the friends, they'll say, why you are worrying, you take smoke and you'll get relaxed, you'll have a good sleep, tomorrow morning you will do very well in your exams. So such a kind of sentences, and they put a pressure. If you want to join my friendship group, you have to smoke, otherwise don't come. तो प्रेशर डालते हैं, हमारे साथ रहना है तो लेना है, नहीं तो नहीं आना है. सो पीयर प्रेशर शुरू हो सकता है. नेक्स्ट स्लाइड. देयर इज अ क्यूरियोसिटी, मतलब ड्रग्स लेने के बाद कैसा होता फील करने के लिए दे आर वेरी क्यूरियस एंड एंथुसियास्ट. सो लाइक ना, इफ यू सी द मूवीज एंड ऑल, आफ्टर टेकिंग अल्कोहल एंड ऑल they'll sing a song, dance, उनको अच्छा लगता है. आप लोगों को भी ऐसा फील हो जाता है कि अरे बाबा ये लिए तो बहुत अच्छा रहता है. सो दे वांट क्यूरियोसिटी बहुत रहता है. नेक्स्ट, मॉडलिंग इमिटेशन, दैट्स व्हाट सेम इन मूवीज. स्मोकिंग सिगार बड़ा बड़ा रहता है, डॉन रहता है, निकाल के फेंकता रहता है. सो सच ए काइंड ऑफ impression sometimes we get it from the movies, even from our friends. So whoever see, even at our house, so if a person is smoking in a house, they'll also try to imitate with their, even from the parents also. So modeling से शुरू हो जाता है. Then another is positive emotional state. मतलब कि आजकल हम देखते हैं ना मूवीज में वगैरह, कोई तो बड़ा कुछ काम कर बोले तो पार्टी बोल के समझते हैं. No, if you are succeeded in your exams, you are done very well in your exams, suddenly you feel you want to do party. So party, how will you celebrate? Most of the time it is with cake, samosa and all. But some friends have their group where party बोले तो smoking, drugs वगैरह लेना रहता है. Okay, so that positive emotional, birthday parties, some successes, so some relationship, और क्रिकेट कप में ये विराट कोहली इतना मारा, सेंचुरी मारा, then let's celebrate. So some occasions will be there, that time will be very happy. That time start taking alcohol, smoking or drugs. Negative emotional state, मतलब जब भी आप बेजार में रहते हैं, so आपको एग्जाम में फेल हो गया है, या you are having a problem at your house, somebody, neighbors or friends, there is a death, so you feel very sorrow and sad. That time what happens, to control the sad, you want to take a party में ऐसा भी स्मोकिंग शुरू हो जाता है, अल्कोहल शुरू हो जाता है. So whenever take you those things, you feel better. So misconceptions and myths भी बहुत सारे हैं सोसाइटी में, कि अगर कुछ लोग बोलते हैं बियर पीने से आपका वजन बढ़ता है ना. कुछ लोग बोलेंगे कि घर में खांसी है, छोटा सा दारू बियर पी लो कम हो जाता बोल के. There are misconceptions, they are wrong. Okay, you should not touch it, you should not take it, you should not advise also. Okay, so there are a lot of misconceptions, and some people say, no, if you take smoking, you'll not get habit. I mean, you are once in a while I'll take smoke, once in a while I'll take social use of alcohol. It is not so. Smoking tobacco, it's very highly addictive substance. They say 1,000 times more addictive than the heroin. It's a gateway. Once you start smoking, other drugs will come. It's a get. आप स्मोक कर रहे थे ना, गांजा अंदर आ जाता है, हीरोइन आ जाता है, अल्कोहल शुरू हो जाता है. So don't ever try to smoke. Next. So these are the ways where the addiction starts. तो स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, एडिक्शन कैसा बनता है. ओके, सो देर आर
grossly if I say I want to try, give a grossly आपको समझाना है बोले तो, so whatever they starts, when they start smoke or alcohol, what it gives a kick. ब्रेन में क्या होता है, अमेगडाला हिप्पोकैम्पस एरिया बोल के एक रहता है, इट्स इनर पार्ट ऑफ द ब्रेन, वेयर अमेगडाला हिप्पोकैम्पस में आपको जो किक मिला रहता है वो स्टोर हो गया रहता है. वो स्टोर होने के कारण से व्हेनेवर यू फील वेरी हैप्पी और व्हेनेवर यू फील सैड, ऑटोमेटिकली द ब्रेन क्या बोलेगा, दैट यू आर फीलिंग सैड और यू फीलिंग बोर्ड, यू टेक these drugs so that you will be very happy. Means the brain what it wants is every time it wants to be happy, है ना. सबको भी लगता है कि we want to be very happy all the time. किसको सैड रहने की मन है, नहीं रहता. तो ब्रेन को भी वैसा ही लगता है. जब भी आपको बोर लगता है, जब भी आपको अलोननेस फीलिंग है, कोई सैड है, स्ट्रेस है, ब्रेन को क्या चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए. तो ऑटोमेटिकली जो स्टोर हो गया रहता है, जब आपको किस चीज से अच्छा लगता है, वो ब्रेन को आपको याद दिलाता है. यू टेक, गो एंड स्मोक, गो एंड टेक अल्कोहल, सो दैट इट स्टिमुलेट्स. एंड इफ देयर इज एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस इज देयर, ऑटोमेटिकली इट स्टार्टिंग. इजीली अवेलेबल है, घर के बाजू बार है, तो ऑटोमेटिकली आपको ब्रेन लगेगा कि मेरे को लेना है, फील हैप्पी, यू गो एंड बार. अवेलेबिलिटी, इजी एक्सेसिबिलिटी, इजीली अवेलेबिलिटी रहा तो दैट विल डेफिनेटली इंक्रीजेस द टेकिंग ऑफ ड्रग्स. सो द whatever the जो किक होता है वो स्टोर होके एवरी टाइम इट गिव्स, याद दिला के आपको ब्रेन में केमिकल चेंजेस होते हैं, स्पेशली डोपामिन, दैट इज अ किक हार्मोन, दैट इज हैप्पी हार्मोन्स. ओके, सो दैट चेंजेस वो लेते लेते होने के बाद क्या होता है, इनिशियली व्हेनेवर वी फील सैड दैट टाइम विल टेक, उसके बाद में ड्रग अपने बॉडी को, अपने ब्रेन को कंट्रोल करेगा. मीन्स मॉर्निंग उठते ही अल्कोहल लेना, दोपहर होते ही शाम में लेते रहना. सो अल्कोहल विल, तो अपने बॉडी को, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए शुरू हो जाता है. सो दैट लीड्स टू ब्रेन में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं. केमिकल चेंजेस होके क्या हो सकता है कि दैट द ब्रेन चेंजेस में क्या होता है, फीलिंग्स, जो एरिया ऑफ ब्रेन है हमारा, जो फील करते रहते हैं, हैप्पीनेस, सैड, एंगर, सो दोस ब्रेन एरिया में डैमेज करता है. फीलिंग्स एरिया, मेमोरी एरिया, मेमोरी, याददाश्त, ऑटोमेटिकली अपना पढ़ाई कमजोर हो जाता है. क्रेविंग मीन्स सडनली उठने, सुबह उठते ही या शाम होते ही दे फील दे वांट टू टेक अल्कोहल और अदर ड्रग्स, क्रेविंग हो जाता है. रिवार्ड पाथवे शुरू हो जाता है. डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी एंड अदर हायर मेंटल फंक्शंस, ऑल दीज एरियाज ब्रेन में जो रहता है दैट विल गेट डैमेज्ड बिकॉज ऑफ दिस ड्रग्स. सो बिकॉज ऑफ दीज ब्रेन डैमेज होने के कारण से ऑटोमेटिकली दे विल हैव एकेडमिक प्रॉब्लम्स. मीन्स they fail in exams, they don't go to college regularly. There will be relationship problems even at home, so they'll quarrel with parents, neighbors, so lot of issues. Motivations. एक बच्चा है तो बीच में recently कि he said he was brilliant in 10th and he was joined as science college में पढ़ रहा है. Now he is telling that सर जी के क्या करने का है, पढ़ के क्या करने का है, क्या आगे काम भी करना है ना, और क्या करना है सर, तो इसलिए पढ़ना नहीं है, कॉलेज में आराम से रहना है, खा के पी के रहना है. सो द मोटिवेशन स्टार्ट्स, मतलब करके क्या करना है वो फीलिंग्स ही नहीं आ रहे उसको, बिकॉज ऑफ दिस ड्रग एडिक्शंस. सो इम्पेयरमेंट इन थॉट प्रोसेस, हायर मेंटल फंक्शनिंग, रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फेक्शंस लाइक HIV. सो साइकेट्रिक इलनेस भी होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस, suspension or expulsion from college. So we usually psychiatrists, the guidelines nowadays, it says that any young fellow who is coming to our clinic and having anxiety, आपको psychotic symptoms है तो first गांजा टेस्ट करो बोल के बोल देते, urine for cannabis test. So such a kind of prevalence is very high even in most of the cities. Next, so complications, sir said it has drugs, any drug, if you take alcohol, routinely smoking or any other drug, will cause lot of health issues. Next, medical, financial, social, family and occupational, legal. Sir has explained in live examples how the addictions not only gives health issues, liver problems, that also gives lot of financial, legal problems वगैरह शुरू हो जाते हैं. Next. So I'll give one more example scientifically, that smoking, most the use, they say in a cigar
देयर इज 4000 केमिकल सब्सटेंसेस रहते हैं. इमेजिन इन अ सिंगल सिगार में 4000 केमिकल सब्सटेंसेस रहते हैं, आउट ऑफ विच 20 आर कार्सिनोजेंस. ओके, सो दी कार्सिनोजेंस क्या क्या हैं कि एक सिगार में निकोटीन रहता है, दैट इज इन इंसेक्टिसाइड, अमोनिया विच इज टॉयलेट क्लीनर, पेंट रहता है, फ्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथनॉल, आर्सेनिक, मीथेन, एसिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड. सो बैटरीज में रहता है कैडमियम वगैरह. सो if you imagine, if you think in terms of like this, through cigarette we are taking all these things. We are taking toilet cleaner, we are taking paint, fuel, methane gas, acetic, butane in our mouth. Okay, so these are very carcinogens. The media, whatever, these smokers and all, they say only nicotine, but in a cigarette there will be 4000 chemical substances, so we need to be very careful. So cigarette, if you take an example, it causes head to toe any kind of cancers it can start. So next, so डराने के लिए क्या करें, WHO has given this slide. If you see this picture, automatically सब लोग डर जाते हैं. ये स्मोकिंग से इतने सारे कैंसर्स और इतने सारे बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं. ओके, सो वेरी डेंजरस इलनेस. नेक्स्ट, so these are financial, social, next, familial complications, next, occupational complications, next, legal complications, 40% of crimes because of this. Next, so psychiatric complications कि the same एंग्जाइटी होता है इस उम्र में, डिप्रेशन भी, जो बच्चे रहते हैं सडनली यंग जनरेशंस, सो दे स्टार्ट सडनली पाल्पिटेशन हो जाता है, धड़ धड़ धड़, बेचैन बेचैन हो जाते हैं, फिजिशियंस के सर के पास जाते हैं, ECG कराना है, मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है बोल देते हैं, दे बिकम वेरी पैनिक. मोस्ट कॉमन थिंग इज कैनबिस यूज, गांजा लेते हैं कुछ लोगों को पैनिक अटैक शुरू हो जाता है. ओके, सो द एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स एंड डिप्रेशन डिसऑर्डर्स वेरी क्वाइट कॉमन अमॉन्ग द ड्रग यूजर्स. There will be on the long term they can have memory impairment, dementia or delirium because of the alcohol. Next. Okay, so this is one more slide. The many people ask, sir, many people use alcohol once in a while and all, or everybody needs treatment, or when everybody is addicted. There are some scientifically there are criteria to say that person is dependent or not, addict हुआ है क्या नहीं हुआ है, कैसे मालूम करना है. 6 criteria there is. One is craving, second is loss of control, third is salience, tolerance, withdrawal symptoms, harmful. Craving मतलब there is intense urge to take alcohol, smoking or any drugs. उनको सुबह उठते ही उनको लेना पड़ता है, स्मोकिंग सुबह उठते ही लेना, नहीं बोले तो उनको मोशन जा नहीं सकते, और शाम होते ही सडनली दे हैव टू टेक अल्कोहल, अदरवाइज दे वोंट गेट स्लीप. सो द इंटेंस अर्ज, घर को जाते जाते रास्ते में सडनली रास्ता चेंज करके बाहर को चले जाते. सो देयर विल बी इंटेंस अर्ज टू टेक एनी ड्रग, दैट इज द क्रेविंग. सेकेंड थिंग इज लॉस ऑफ कंट्रोल, कि प्रॉमिस कर रहे थे घर में सुबह में कि मैं आज नहीं पीता बोल के, फिर शाम में जाके पी के आते हैं, कि दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट. सो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड क्राइटेरिया इज लॉस ऑफ कंट्रोल. थर्ड थिंग इज सेलियंस, मतलब उनका जो जिंदगी रहता है पूरा ड्रग्स के आगे पीछे ही रहता है. मतलब सुबह पीना, फिर ड्यूटी करना, फिर दोपहर में पीना, फिर शाम में ड्यूटी करना, पीना ही दिन भर, कैसा पीना, कितना पीना, वही सोचते रहते. स्मोकिंग कब करूं, कब जाकर ड्रग्स ले लूं. सो उनका पूरा जिंदगी रहता है, इट इज ऑल ऑन दी ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज. दे हैव टू अर्न मनी टू टेक ड्रग्स and they spend on their taking alcohol, and they won't worry about their family, health, nothing else. The whole thinking, thought process दिन भर वो ड्रग्स के ऊपर ही रहता है. फोर्थ पॉइंट इज टॉलरेंस, मतलब जब इनिशियली आदमी 1-2 सिगरेट शुरू करता है, फिर बाद में 10 हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं. ड्रग्स लेते हैं, स्पासमोप्रॉक्सिवन कैप्सूल्स और कोरेक्स सिरप, पहले 1 बॉटल शुरू कर देते, फिर बाद में 4-4 बॉटल होते हैं, 10-10, 40-40 कैप्सूल्स पर डे होते. सो उसका अमाउंट बढ़ जाता है, बिकॉज वो 4 सिगरेट ले से उनको किक नहीं मिलता है, वो दे हैव टू इंक्रीज इट. 10 सिगरेट मारे तो उनको खुशी मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता. सो ब्रेन उसको कैपेसिटी चेंजेस होते रहते. देन द विड्रॉल सिम्टम्स,
अगर एक दो दिन ड्रग्स नहीं लिए, एक दो दिन आपने स्मोकिंग अल्कोहल नहीं लिए, तो क्या हो सकता है कि उन लोगों को नींद नहीं आता है, बेचैनी होता है, हॉल डोल घबराहट होता है, हाँ। सो और कुछ लोगों को सीजर्स आते हैं, फिट्स आ सकते हैं, कुछ लोग अलग अलग बात करना शुरू कर जाते हैं। ओके, सो विड्रॉल सिम्टम्स, पैल्पिटेशन होता है, स्वेटिंग होता है, आंखें लाल हो जाते हैं, सो ट्रेमर्स हो जाते हैं, हाथ शेक होते रहते हैं। दिस आर विड्रॉल सिम्टम्स। 6 पॉइंट इज हार्मफुल यूज। डॉक्टर बोले रहते हैं कि दे शुड नॉट टेक अल्कोहल बिकॉज योर लिवर इज डैमेज्ड, बट स्टिल दे गो टू बार एंड टेक अल्कोहल। सो द हार्मफुल इज, तो इसमें जो क्राइटेरिया में है 3/6 शुड बी प्रेजेंट फॉर मोर देन 1 year, देन द पर्सन इज एडिक्टेड। ये 6 क्राइटेरिया में 3 क्राइटेरिया किसको तो है, दैट मीन्स ही इज एडिक्टेड, ही नीड्स ट्रीटमेंट। ओके, next. So as sir said, alcoholism is not just a habit, it's a disease. Okay, क्यों है कि everybody thinks, no, most of the people you have seen, your friends or who are colleagues in your family, that they want to stop taking smoking or a गुटखा, but it's not possible. सुबह बोले रहते फिर शाम को खा के आते हैं, क्यों नहीं होते? Because there is a changes, frequent using of drug that caused a significant changes in our brain, वो डोपामिन लेवल, सेरोटोनिन चेंजेस कर दिया रहता है, बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। सो ब्रेन में चेंजेस होके जो उनको अर्ज करने, उनको लेना ही पड़ता है, सो दैट इज अ डिसीज। सो इफ इट इज अ डिसीज, देन वी हैव अ ट्रीटमेंट फॉर इट। नेक्स्ट वो जो दिस इज द पाथवे, कैसा एडिक्शन होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं ब्रेन में। सो ब्रेन में चेंजेस होने के कारण से इट बिकम्स अ डिसीज and they become slave of the drugs, they have to take it, even they want to stop it but not be possible, तो वो डिसीज हो जाता है। नेक्स्ट, सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं? सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस की एक मेडिसिन है फार्माकोलॉजिकल, सेकेंड इज साइकोलॉजिकल दैट इज काउंसलिंग, थर्ड इज रिहैबिलिटेशन। सो अल्कोहल के ट्रीटमेंट या स्मोकिंग के ट्रीटमेंट या दूसरे ड्रग्स, जो भी ड्रग्स ब्रेन में केमिकल चेंजेस करे रहते, वी नीड टू बैलेंस इट थ्रू अदर मेडिसिन। हाँ, तो वो जो ब्रेन को डैमेज कर दिया तो उसको नॉर्मल करने के लिए वी हैव ड्रग्स, सो दैट देयर स्ट्रॉन्ग अर्ज टू टेक अल्कोहल अदर ड्रग्स इट रिड्यूसेस एंड देयर विड्रॉल सिम्टम्स। अगर एक बार अल्कोहल नहीं पिए तो उनको नींद नहीं आता, बेचैनी होता है, घबराहट, वो कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन रहते हैं। सो वील स्टार्ट दोज मेडिसिन, इट मे टेक 6 months, 1 year, some people need a long term medicines. Okay, so second is psychologically, means counseling. So we'll make them to acknowledge that the drug which is they are taking, it is causing significant problem into their health as well as their financial problems, family problems, सब बोल के। So we'll acknowledge them to कि आपको ये सब problems हो रहे हैं, you need to stop it. So stop करने के लिए क्या क्या तरीके हैं उनको समझाते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एंग्जाइटी कैसे कंट्रोल करना, हाउ टू हैव टू बी बिजी, क्यूज मतलब ट्रिगर को कैसा करना, कंट्रोल करना, वो सब सिखाते हैं उनको। Then the rehabilitations, with this treatment, counseling, if they are not ready to quit, तो उसको क्या बाद में rehabilitation, मतलब सेंटर्स रहते, कैसे हॉस्टल के जैसे सेंटर्स रहते, so their individual patient will be there, their food, everything will be given along with medicines. उनको बाहर छोड़ना नहीं रहता है, उनको वहाँ पे योगा एक्सरसाइज वगैरह करा के उनको ड्रग्स छुड़ाते हैं। समटाइम्स 3 months 6 months उनको रखना पड़ता है। नेक्स्ट, so these are some skills अभी जो बोले हैं, how the drug addiction starts, how the drug addiction will go into habit होके disease हो जाता है, कैसे peer pressure शुरू होके या रोल मॉडलिंग से या पॉजिटिव इमोशनल स्टेट से शुरू होके दैट इट बिकम्स ए डिसीज, वो एडिक्ट हो जाते हैं। ट्रीटमेंट कैसा होता है वो बोल दिए, मगर इसको प्रिवेंशन कैसा करना है, दीवार कैसा बनना है कि दी यंग पॉपुलेशन जो है, स्टूडेंट्स हैं, व्हाट स्किल्स दे नीड टू प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग एडिक्टेड। तो बेसिक लाइफ स्किल्स चाहिए सब बच्चों को। ओके, कि कम्युनिकेशंस, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, जो बेसिक लाइफ स्किल्स है, दैट हैज टू बी स्ट्रांग। एज सर सेड, द कम्युनिकेशन हैज टू बी वेरी फाइन। आपको टेलिंग नो है ना, दैट इज वेरी क्लियर एंड थ्रू आई टू आई कॉन्टैक्ट। आपके पीयर प्रेशर्स
जो फ्रेंड्स रहेंगे आपको बोलेंगे, आपको बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप ड्रग्स ले लो, आप स्मोक करो, नहीं तो तुमको नहीं बुलाते, हम हमारे ग्रुप में नहीं रह सकते, आपको पढ़ाई के मटेरियल नहीं देंगे, सो दे आपको ब्लैकमेल करने के लिए शुरू करेंगे। बट आपको लेना नहीं है बोले ना, दैट हैज टू बी क्लियरली कम्युनिकेट टू योर फ्रेंड्स। उनके आंखों से आंखें मिला के जोर से आपको नो बोल के बोल देना है। एक बार बोलना, 2 बार नो बोल देना, और उसको आप बार्गेनिंग करने के लिए ऑप्शन ही नहीं देना उन लोग को। अगर वो बार्गेनिंग करे, ले लो, कल ले लो, ऐसा बोले ना, यू हैव टू गो आउट ऑफ दैट प्लेस। आपको वहां से हट जाना ही है, बेहतर रहता है। ओके, सो दीज स्किल्स वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आपको एडिक्शन नहीं होना, बल्कि यू शुड हैव ए कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अच्छा रहना, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, ड्रग्स लिए तो क्या होता है, नहीं लिए तो क्या होता है, दोज थिंग्स कैपेसिटी यू हैव। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रहना चाहिए, वो बोलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास। ओके, द फर्स्ट थिंग इज, आपको ये जो अभी हम आज क्लास ले रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग initiation and maintenance of substance use, that means drugs. Why are we giving the knowledge to you? Why? जब चीज का बारे में अच्छे मालूम पड़े तो ही then we can understand करके उससे दूर रह सकते। अगर हम आपको अच्छा नॉलेज नहीं दिए, दूसरे वाला रॉन्ग नॉलेज दिए, तो भी आपको अच्छा ही लगता है ना, कि the other person who is using drug, he'll give a such a kind of explanation that you will take cannabis. I have seen a guy who was staying in Bangalore. He's a student, degree student. वो इतना गांजा के बारे में पढ़ाई करके आया वेबसाइट गूगल से, कि he is confronting with me. He was telling positive things about the cannabis. He was saying the ganja is used by many people. It has medicine properties and all the things. I am trying to convince him, but he's not agreeing, because उसको जो पहले जो फीडबैक था, इट इज ऑल एवरीथिंग पॉजिटिव। थ्रू दिस आवर सर्च, आवर एंड आवर इंस्टीट्यूट्स के बारे में वी आर टेकिंग एन इनिशिएटिव, सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड द व्हाट आर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टेकिंग ड्रग। इफ यू कम टू नो व्हाट इज द रॉन्ग, देन ओनली यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम टेकिंग ड्रग्स। सो अवेयरनेस एंड साइंटिफिक नॉलेज ऑफ टेकिंग ड्रग्स, वो आपको रहा, ऑटोमेटिकली विल नॉट यूज इट। सेकेंड, सो मोस्ट थिंग्स कैसा होता है कि ड्रग्स क्यों लेते हैं, दे आर नॉट एबल टू हैंडल देयर स्ट्रेस, हैंडलिंग द ट्रिगर्स। एग्जांपल, फेल इन एग्जाम्स। तो फेल एग्जाम्स होने के बाद क्या होता है, कुछ लोग बच्चे स्पेशली इन डिग्री, मेडिकल, इंजीनियरिंग और एनी बिजनेस, व्हाटएवर इज, इफ दे फेल इन समथिंग, what they become very happy, sad, they don't get good sleep. What they do, they go to their friends. उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, they won't think it, but they take the help of drugs to avoid the things, और उसको भूल जाने के लिए try to next. So skills क्या चाहिए आपने एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ, स्किल्स क्या चाहिए कि so that आपको प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, क्या है। So the identify and acknowledge the actual problem or trigger, internal or external triggers. Example, make a list of possible solutions 1, 2, 3. Choose the best one after seeing the pros and cons and implement it. मतलब एग्जाम्पल कि आपके एग्जाम में फेल हो गए हैं, so how do you manage it? Anyone want to tell? तो आपको एग्जाम्स में फेल हो गए तो क्या करते हैं आप, कि नॉर्मली क्या होता है, एग्जाम फेल होने के बाद रोने बैठ जाते हैं, घर में कंप्लेंट करते हैं, टीचर्स के बारे में कंप्लेंट करते हैं, पेरेंट्स के बारे में कंप्लेंट करते हैं, फैसिलिटीज के बारे में कंप्लेंट करते रहते हैं, और समबडी भी स्पेशली डिग्री में ड्रग्स लेने शुरू कर देते हैं। सो अगर उसको करने के लिए पहले वी शुड थिंक, सो मेक ए लिस्ट ऑफ पॉसिबल, मतलब वो एग्जाम में फेल क्यों हुए, वी शुड अंडरस्टैंड इट। सो क्या क्या ट्रिगर्स थे, इंटरनल ट्रिगर थे, एक्सटर्नल ट्रिगर। इंटरनल ट्रिगर बोले तो वेदर जो आपका मूड चल रहा है, आपको एग्जाम तैयारी था, वेदर योर मूड वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इनफ, वेदर यू हैड अ गुड स्लीप, वेदर यू हैड फूड ऑन अ राइट टाइम, वो सब इंटरनल ट्रिगर्स रहते हैं। एक्सटर्नल ट्रिगर्स क्या रहते हैं, कि आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ होगा, या आपको पढ़ाई मटेरियल में कम रहे होंगे, कुछ तो एक्सटर्नल ट्रिगर, या दूसरों की तरफ से
आपको तकलीफ होते रहती है. सो दोज थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड इट एंड मेक ए लिस्ट ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन टू. अभी नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करना है, अभी हो गया. सो व्हाट नेक्स्ट? सो वी नीड टू हैव अ पॉसिबल सोल्यूशंस. नेक्स्ट एग्जाम में कैसे पॉसिबल, आपको कैसा पढ़ाई करना है, क्या क्या टाइम टेबल करना है, लास्ट टाइम क्या गलती हो गई थी, इस टाइम पे क्या कैसा गलती करेक्शन करना है. सो दोज थिंग्स वी हैव टू मेक अ पॉसिबल सोल्यूशंस and choose the best one and apply for it. So rather than becoming sad and going addicted to the drugs, we need to understand what the problem is, why this problem has happened, and we need to try to solve it. Next. तो peer pressure को कैसे हैंडल करना, आपके दोस्त अगर गलत हैं तो हाउ टू हैंडल इट, कोई बोलेगा? सो आपको peer pressures अच्छे नहीं तो what you do? छोड़ देना है. यस, छोड़ देना है, अलग कंपनी बनाना है, अच्छे दोस्तों की कंपनी बनाना है. आप लोगों को दोस्त सब तरफ अच्छे ही रहते, बुरे भी रहते, हमारे ऊपर रहता है वेयर वी गो, राइट? एवरीवेयर इट इज देयर इज अ बैड एंड अ गुड थिंग्स. सो इट इज अप टू यू. वी आइदर वी आर गोइंग टू द बैड ग्रुप और अ गुड ग्रुप. इफ देयर इज अ बैड ग्रुप, स्टॉप इट गोइंग देयर, गो टू अ गुड ग्रुप. ओके, नेक्स्ट. सो पीयर प्रेशर रहा है तो से नो क्लियरली, वो रहना है. नेक्स्ट. आपको कभी भी आपको बेजार लग रहा है, अपने आप लोनलीनेस फील ले रहा है, तो यू शुड हैव अ गुड सोशल कम्युनिकेशंस एंड अ कनेक्टेडनेस. मीट रेगुलरली विथ योर फ्रेंड्स, सीनियर्स, टीचर्स, डिस्कस ऑन academic और नो academic मैटर्स, आस्क फॉर हेल्प इन अ नीड एंड प्रोवाइड हेल्प टू अदर्स. जो आपको अच्छे कंपनी नहीं है तो अच्छे कंपनी बनाइए आप. यू गो टू हैव good friends you have in your class, okay, in your neighbors, even with your parents, teachers. अपने तरफ से आप कोशिश करें तो you will have a good group. So not only your academic matter, you can discuss with other things, you can share your personal things. Somebody will having lot of stress, they are not able to write or confident enough to write your exams. अपने feelings को, अपने expressions को करना है. So then वो अपने आप को दे विल बिकम मोर सोशली कनेक्टेडनेस एंड उनको लोनलीनेस फील नहीं होगा. सो इफ देयर इज अ नॉन रिस्क ऑफ सब्सटेंस, कि एनीबडी हैज, नेक्स्ट स्लाइड, एनीबडी फीलिंग गोइंग थ्रू कि मेरे को स्मोक लिया है, सो देन ही हैज टू बी वेरी केयरफुल. नेक्स्ट. ओके, सो दिस इफ इट ऑल, इफ एनीबडी इज गोइंग थ्रू ड्रग एडिक्ट हो गया है, एडिक्ट मतलब he has just started it, what कि suffering from addiction does not mean that life is over and you cannot do anything. So world में कैसा है, for every problem there is a solution. Okay, हार नहीं मानना है. If at all anybody is using any drug, it is not the end of the life. You have a chance, you have an opportunity to come out of this. So identify it as early as possible. Learn and incorporate all the skills to prevent yourself from further indulgence. मतलब कि आपको आगे एक बार लिए तो you should not go taking one more time, to prevent that and overcome from stigma. कैसा होता है कि if anybody is going through a lot of stress, as madam said, कि अगर आपको साइकेट्री प्रॉब्लम रहे तो पागल बोल के समझते हैं लोग, है ना? तो साइकेट्रिस्ट पास जाने के लिए डरते हैं लोग. डरने मतलब कि साइकेट्रिस्ट पास गए तो मेरे को पागल है लोग समझेंगे बोल के. इट इज नॉट, दैट इज अ स्टिग्मा अपनी सोसाइटी पे है. साइकेट्री इलनेस और मेंटल इलनेस जो है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, 20% ऑफ पॉपुलेशन जो है डिप्रेशन से सफर कर रहा है. आउट ऑफ 100, 20. कौन भी हो सकता है, आज हम है कल कोई भी हो सकता है. सोचो, जो कैसा कोल्ड है, टाइफाइड है, मलेरिया है, वैसा एंग्जाइटी, डिप्रेशन है. अपने माइंड को हमको लोगों को चेंज करना है. सो वेन एवर यू आर इन नीड ऑफ हेल्प, तो यू शुड डिस्कस इनिशियली विथ योर फैमिली को बोलना है कि मेरे को ऐसा ऐसा हो गया है, मैं फ्रेंड्स के साथ गया था, एक स्मोक मारने के लिए बोले, मैं लिया, उसके बाद में बार बार लेना मन बोल रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है. फैमिली विल कम टू नो. इनिशियली डांटेंगे, बोलेंगे, फिर बाद में दे विल गिव अ सोल्यूशन. If that not possible, they'll bring to a psychiatrist, doctor. ड्रग एडिक्शन रहने दो, आपका हेल्थ, मेंटल हेल्थ इश्यूज होने दो, डिस्टर्ब स्लीप रहने दो, पढ़ाई में मन नहीं आ रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, धड़ धड़ बेचैनी हो रहा है, रात में सपने पड़ रहे हैं,
है ना. So they'll have so many psychiatric illnesses comes. So that times you need to contact the mental health professionals, means a psychiatrist. So we'll understand whatever the problem is and we'll try to help with the, if needed medicines or with needed counseling and all. ओके. सो बहुत सारे ये भी हैं कि कंसेप्शन मिथ भी है कि साइकेट्री मेडिसिन, एक बार साइकेट्रिस्ट के पास गए बोले तो गोलियां जिंदगी भर चलते हैं, नींद का गोली रहते हैं, सब रहते हैं. इट इज ऑल, एवरीथिंग इज रॉन्ग. नाउ नवेडेज वी आर न्यूअर ड्रग्स. एक 6 months का 1 year का कोर्स रहता है. कुछ लोगों को मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ता है. सो वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस नाउ. देयर इज अ लॉट ऑफ स्टिग्मा टुवर्ड्स कमिंग टू अ साइकेट्रिस्ट. तो उसको अवॉइड करके यू शुड हेल्प, इफ इट ऑल नीडेड you should take a help from a psychiatrist. Okay, so with this I conclude my topic and I thank the madam and the Shine Group of Institutes and all the dignitaries. Question answer. हाँ. जी, आपके अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं. इधर के जिम्मेदारों की क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबान, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने ब्रीफ किया. एक छोटा सा सवाल एज ए पेरेंट मेरा आपसे ये है कि मैं कुछ ऐसे मेंटली या कुछ फिजिकली कैसे समझ सकता हूँ कि मेरा बच्चा डी एडिशन होने जा रहा है, या कुछ ऐसा महसूस कर सकता हूँ कि मैं, क्योंकि मैं बच्चों से ज़्यादा बात नहीं कर सकता या बच्चे ये रहता दोनों में, तो कुछ महसूस करने की कुछ. गुड क्वेश्चन. गुड क्वेश्चन. सो ये सबको रहता है कि एज अ पेरेंट सबको टेंशन रहता है, क्योंकि आजकल हम देखते रहते हैं सडनली 2 साल के 5 साल के बाद मालूम पड़ता है मेरा बेटा 2 साल से ले रहा है ड्रग्स बोल के. तो मगर कैसे आइडेंटिफाई करना? जो अल्कोहल रहता है, ये रहता है, फेस जो उतना रौनक रहता है वो कम हो गया रहता है. एंड देयर विल बी स्मेल ऑल्सो. जो गांजा लेते हैं दैट इज़ वेरी कॉमन अमंग, ये बिदर में भी ज़्यादा है, स्पेशली जो डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कि वो लोग लेते हैं ना, तब उनके गांजा लेने के बाद जब आते हैं बच्चे वहाँ घर को, सो दे विल हैव रेडनेस ऑफ आइज, बोथ द आइज विल बी वेरी रेड. दोनों आंखें बहुत लाल हो गए रहते हैं, उनको सुस्त रहते, नींद में आए जैसे रहते हैं लोग. आते झोली चले जाता है, खाना बिल्कुल नहीं चाक करता है, खाना ही नहीं खाते वो लोग, और पतले होते रहते. और ऐसा होता है कि वो लोग बच्चे हैं ना 2-3 दिन घर को ही नहीं आते, या कभी कभी जो सिंसियर बच्चा रहता है 8 बजे घर में रहता है, आना 12-1 बजे आने के लिए शुरू कर देता है. चेंज इन बिहेवियर हो जाता है कि गुस्सा आ जा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, पेरेंट के साथ आर्गूमेंट्स करना, घर में पैसा निकालने के लिए बोलना, चोरी करना, वैसा हो सकता है. और बाहर के लोगों के साथ झगड़ा आना, कॉलेज में कंप्लेंट्स आना, कॉलेज को रेगुलरली नहीं आ रहा है, पढ़ाई में मार्क्स कम आ रहे हैं उसके, सडनली ब्रिलियंट 90 है तो एकदम 60% आ गया रहता है. वो उतने सारे चेंजेस भी आ जाते हैं. कुछ लोग नींद ही नहीं करते हैं, तो वो जो है इस तरह के चीज़ेस दे कैन हैव. और कोई सवाल? कुछ लोगों का आजकल क्या है, हेयर स्टाइल जो है, मैंने सब में नहीं रहता है, कि कुछ लोग हेयर्स अलग ही चेंज कर देते हैं, रेड कलर करना, वाइट करना, टैटू डालना. ये भी कुछ बच्चों में हु आर टेकिंग ड्रग्स, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेशंस. मगर सब में नहीं रहता है, कुछ लोग रहता है कि वो सब टाटू बहने वाले सब ड्रग एडिक्ट बोल के नहीं रहता है. ऐसा भी नहीं घर में जाके चुप मारते रहे उनको, ओके तुम ले रहे क्या ले रहे, कुछ बच्चा ऐसा रहते. ओके Thank you, Dr. Saab. Being a retired district education officer, हम ज़्यादा बच्चों के और टीचर्स के साथ रहते हैं, काफ़ी स्कूल से हमारा एक्सपीरियंस रहता है. तो
एनी हाउ मैं समझता हूँ आई एम नॉट हैविंग दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन ये 10-12 तक थोड़ा कम है। आप जैसा घड़ी घड़ी रिपीट करते हैं डिग्री में, तो ये बहुत सिम्टम्स है और उसके क्या क्या इतना डिटेल नहीं मालूम था। हम भी काफ़ी कॉन्फ्रेंस काफ़ी अटेंड करें, लेकिन इतना डेप्थ में और इतना जिसके सराउंडिंग जो अफेक्ट्स है वो कुछ हमको नहीं मालूम होते। ना बीइंग ए फादर पेरेंट्स को मालूम होता है, ना बच्चा तो वो तो इन्वॉल्व रहता है। तो काफ़ी अच्छा नॉलेज दिए हैं। ये नॉलेज को हम स्प्रेड करना, हम अपने सोसाइटी में अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा वक्त निकाल के स्प्रेड कर। देखिए कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल जाते, और कुछ चीज़ें हमारे ढूंढने पे भी नहीं मिलते। आजकल तो गूगल वेबसाइट्स है, लेकिन बस उतना ही आता है जो एक 4 लाइन की होती है। आप हार्ट अटैक है, ये है, कुछ देखेंगे तो 4 लाइन देखेंगे या हाफ पेज देखेंगे, लेकिन उसके 4 लाइन का 40 पेजेस निकलते हैं हार्ट अटैक के ताल्लुक से। तो हम ये जो नॉलेज है, नॉलेज क्या है, इंफॉर्मेशन क्या, नॉलेज इज नथिंग बट ए बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन। और उसको नॉलेज कैसा बोलेंगे? अगर वो इन्फॉर्मेशन तुम दूसरों के सामने वो पोटली खोलेंगे नहीं, वो बंडल खोल के दूसरों के सामने नहीं देंगे, इट इज़ नॉट ए नॉलेज। जो चीज़ काम में आती है वही नॉलेज होता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का, काफ़ी अच्छा लगा। और इंग्लिश हिंदी वगैरह सभी मोटिवेट करके काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। Sorry, thank you. First of all, thank you so much for all these words and all that I got at. But I got a question, like, there are people like, they're suffering very high way on the age of like 26 or something. We can't go to the doctors, like they are not comfortable to go with the doctors. Like even the brothers, we can talk like perfect way. Whenever they talk for these something that is like in changes and something, they're like, why are you talking to me about these things? Like, so how can we, convince them to just stop it? Like brothers are not that much easy to convince, like what to do in this situation. See, you are talking about the completely they are denying it. They are not taking the drugs, but you feel that they have to stop it. Yes. But they are not convinced to go to doctors or taking any kind of medicine or something. Like Yes. what to do in this situation? Okay. So that is where the yes. ये जो है ना, that is called as active listening and empathy. So the first of all, as a family, as a friends, what we can do is we have to listen to the person whatever he is saying. And we should not give judgments. We should not tell whether it is right or wrong. First, we should listen to them whatever he is saying. If he is accepting the things that I am taking alcohol or smoking or anything, whatever it is, he should narrate his story. वो क्यों ले रहा है, कैसा ले रहा है, कैसा शुरुआत हुआ, ये सब चीज़ उसके बारे में हमको सुनना है. जब वो बोलते रहेगा, वी शुड नॉट कि उनको नहीं बोलना कि तुम गलत कर रहे, ये क्यों कर रहे, गुस्सा नहीं करना है. वी शुड एक्टिवली लिसन. वो क्या बोल रहा है उसके मन का पूरा उसने खाली करना है. देन वी कैन से वी कैन एम्पथाइज विद देम. मतलब कि वो जो भी ड्रग्स लेता है, जो भी उसमें आदत पड़ जाता है, वो रॉन्ग बोल के एज ए पर्सन रॉन्ग नहीं रहता है. उसका आदत बुरा रहता है मगर पर्सन अच्छा रहता है. वो समझना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर वो बोल रहा है कि मैं ले रहा हूँ, उसको छोड़ना है या बोलते रहेगा, उसको हम मारने लगे, डांटने लगे, पुलिस को बोले, वो डराते, भाई लोग आते, काका आते, मामा आते, सब लोग डांटना फेंकना मार दो. इन वन वे वी नीड टू बी वेरी हार्ड एनफ कि उसको बोलना सही, बाबा ये गलत है, गलत आपको लेना नहीं. दूसरी एंगल में भी उसका जो फीलिंग्स है वो क्यों शुरुआत में क्या, या एग्जाम में प्रॉब्लम है, उसका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या बाहर कुछ उसका दोस्त उसको बहुत ब्लैकमेल कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है. फिर बाद में उसको कन्विंस करना है, देख बाबा इफ़ यू वांट टू ट्राई, उसको छोड़ना, इफ़ यू वांट टू ट्राई यू गिव ए ट्राई. हम जो भी हेल्प चाहिए विल गिव.
आपको कहाँ बाहर लेके जाना है या दोस्तों के साथ रहना है 2-3 दिन, आपको कहाँ पर तो दरगाह या कहाँ पर प्रेयर के लिए जाना है, और विल डू वॉट एवर द हेल्प पॉसिबल। आपको तब भी आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, यू टेल अस व्हेनेवर, विल गो टू अ डॉक्टर, विल गेट द हेल्प। सर He doesn't want to, person who is taking, he doesn't want to go to doctor, doesn't want to talk with the parent, doesn't want to talk with the brothers, doesn't want to do anything. He wants to solve his problem by himself. So वो खुद ही प्रॉब्लम कुछ हल करना चाहता. So get involved in some distracting activities. Distracting activities in playing, going gym, and go with a good network, good social network like this one. Distracting activities. Distract means you distract from the thing. And second is talk it through, whoever it is, brothers, sisters, friends, anybody. And the third thing they have written urge surfing. I will tell you what is urge surfing. URG is surfing. Urge surfing. It is seen in the sea, ocean. So urge surfing and challenges and change your thought. So what is the challenges? Go to the positive side, do meditation, do prayers and all, and challenge and change the thoughts and distracting yourself by playing games, by this one. So urge surfing, what they have mentioned, if you want to try, if I'm smoking, if I'm want to take alcohol, morning he wants, evening he wants, sit in a meditation, this one. And urge surfing means there are a lot of things will come to the mind once you start meditating. अरे I should leave the meditation, मैं छोड़ना चाहिए, अरे उठना चाहिए, ये क्या meditation है, गलत ख्यालात आते meditation के टाइम पे, इधर का उधर का ख्यालात आते. तो you see that ocean में जैसा, समुंदर में जैसा लहर आती, लहर आके चले जाती, लहर रुकती नहीं कभी. तो कभी कभी कुछ लोगों को, एक एग्जांपल देता हूँ, डोंट टेक इन अदर सेंस, खुजाने की आदत रहती, बार बार खुजाते रहते, इधर खुजाते रहते. तो ये अर्थ सर्फिंग जो है, वी शुड टेक कि एक वेव आ रहा चलेगा, आ रहा टच कर रहा अपने को, चलेगा, इट विल नॉट लास्ट लॉन्गर. तो आपका जो अर्ज है, अर्ज सर्फिंग को जो है, यू शुड डिस्ट्रैक्ट दैट अर्ज. तो 15 मिनट 20 मिनट करिए, बहुत से थॉट्स आते हैं, उठ जाना गलत है ये सब, बट सिट मेडिटेटिंग, एंड एक वेव आ रहा है, मेरे को छू के चले जा रहा, मेरे को बस खत्म. दैट इज 4 एक्टिविटीज. एंड समटाइम्स दे हैव टोल्ड डोमेस्टिक पेट्स, इवन आउटसाइड यूरोप, दिस वन, कुत्ते बिल्ली पाल के यू डिस्ट्रैक्टिंग यूर दिस वन, दैट इज really feel themselves like they are doing wrong, or do they feel like they do mean like whatever they do? instead of person feeling wrong, you are addicted to that thing. There is no question that person he feels wrong. Day and night, the positive impulses, the negative impulses in the brain will overtake the positive impulses. If somebody is taking drugs and all, मैं गलत करूँ, he will think 10 times, but dependency will overtake it. So he'll depend on that. So there are, if you are taking and all, best is that it is a worse than the poison. If you know something, if you know that fire is there, why you want to put the hand? आपको मालूम है अंगार है, क्यों डालना चाहते हैं आप? Rehabilitation के बाद आते 6 months सही रहते, फिर again they go back to the same. उसको कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है. एक साल rehabilitation वापस आ जाए, फिर चले जाए. दैट इज द ना, क्या बोलते हैं कि इट्स अ प्रोसेस. एडिक्शन जो ट्रीटमेंट है, ये प्रोसेस है, ये एक बार ही ख़त्म नहीं होता है. ये हमको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आजकल जो ड्रॉबैक है हमारा एडिक्शन का ट्रीटमेंट की, अभी साइंस इतना तक नहीं है कि मैं 5 डेज़ का ट्रीटमेंट कर देता हूँ, एडिक्शन ही चले जाता बोल के. डे में कम, आगे में आ सकता है वैसा, मगर अब के जो साइंटिफिक के अब के लेवल पे जो ट्रीटमेंट है, एडिक्शन का ट्रीटमेंट है, इट्स अ प्रोसेस. अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, उसको ऊपर एफर्ट डालते रहना पड़ेगा. कि एक बार रिहैब सेंटर में डाले, 3 महीना आते हैं, 6 महीने 1 साल अच्छे रहते हैं, फिर ड्रग्स लेते हैं, फिर आइडेंटिफाई करना है, फिर ट्रीटमेंट देना है, फिर रिहैबिलिटेशन करना है, फिर निकालना है. तो ये प्रोसेस है,
अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, मगर जो है ना 70% जो लोग हैं दे विल लिव इट। सर बोल रहे थे कि कदीर सर बोले हैं कि अगर इस टॉक से अगर एक फैमिली भी बच गए इससे, अल्फाज है कदीर सर के अल्फाज है, आपका जो ये अरेंज रहेगा प्रोग्राम, डॉक्टर साहब मैं समझूंगा एक फैमिली भी बेनिफिट हुए तो मेरे को दुआ लगेंगी बोले। कि हम अगर हम निराशा हो गए कि यार बाबा ये ट्रीटमेंट लेता है छोड़ता है, फिर ट्रीटमेंट में क्या रखा है, मगर एक दिन आएगा कि ही विल लिव इट, डेफिनेटली ही विल लिव इट, बट अपना जो ट्राई रहता उसको छोड़ना नहीं है, बिकॉज दिस इज द प्रोसेस। वी नीड टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल रिपीटेडली, एडमिट हिम, गिव ए ट्रीटमेंट, एटलीस्ट उसका जो हार्म है, बॉडी को हार्म है, वो तो कंट्रोल में होता, छोड़ता नहीं होगा मगर वो जीता तो रहेगा आगे। ओके मगर 70% लोग विद ट्रीटमेंट छोड़ते हैं, 30% लोग अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, मगर उनको ट्राई करते रहना है। One more thing regarding alcohol, बहुत से लोग क्वेश्चन नहीं पूछे इधर। somebody will ask in our clinic, can I take small 30 ml? तो person, this is a frequent question asked by many people. तो WHO का यूनाइटेड नेशन का स्टेटमेंट है, there is no amount of alcohol which does not affect the body। कहते there is no amount of alcohol which does not have, even as one drop भी इफेक्ट होता। WHO का स्टेटमेंट है 30 ml लिए तो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल सब, देयर इज WHO का स्टेटमेंट, देयर इज नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल व्हिच डज नॉट अफेक्ट द बॉडी। एंड यूनाइटेड नेशन का स्मोकिंग के बारे में, इवन 1 cigarette विल हैव द सेम इफेक्ट्स एज 10 cigarettes। ये पूरी कमेटी की जो है, क्या करेंगे वो। जज़ाकल्लाह खैर। मैं दोनों डॉक्टर हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही कीमती बातें जो माशरे के लिए नासूर हैं, उस मौजू पे जो है आज की बात हुई और बहुत सारी नई चीज़ें हमारे सुनने में आई। हम सभी हजरात से गुजारिश करते हैं कि अपनी नस्ल की हिफाजत करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशा आवर चीज़ हराम है। शराब को तो इस्लाम ने उम्मुल खबाइस कहा, तमाम बीमारियों की माँ, तमाम बुराइयों की जड़ शराब है। लिहाजा शराब से बचना है, गुटखे से बचना है। हर नशावर चीज़, जितनी भी चीज़ें इंसान की अक़लों को महवर करने वाली हैं, इंसान की अक़ल को मसहूर करने वाली हैं, सारी चीज़ों से बचने के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। तो इस मौके पर मैं तमाम अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ कि अपनी नस्ल की हिफाजत करें, अपनी हिफाजत करें। ये जहरीली चीज़ें हमारे तमाम मुआशरे को तबाह कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। अब अहद कर लें हम कि इंशाअल्लाह ख़ुद भी इससे बचेंगे और हमारी नस्लों की भी इससे हिफाजत करेंगे। डॉक्टर साहब ने एक मिसाल दी कि भाई हैदराबाद शिफ्ट हो गया, जोड़ा शिफ्ट हो गया, 2-3 बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। साल 1.5 साल में उनकी लाइफ ज़ीरो पे आ गई और जितनी जमा पूंजी थी सब की सब ख़त्म हो गई, और जो अच्छी तालीम हासिल कर रहे थे वो बिल्कुल ज़ीरो में आ गए, और वो ख़ुद जो है दूध बेचने के लिए और तरकारी बेचने पर मजबूर हो गए हैं। तो ऐसे यही वजह, यही बना, नशा ही जो है उसकी ज़रिया बना, नशा ही उसका जो है वजह बना कि पूरा घर का घर तबाह हो गया, पूरी जमा पूंजी उसकी ख़त्म हो गई। ये एक नहीं कई एक मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। तो लिहाजा आगाही हम तमाम के लिए ज़रूरी है। सब अहद करेंगे कि इंशाअल्लाह आइंदा से या फिर अभी से जो है हम इस ताल्लुक़ से एक शूर बेदार करेंगे कि ऐसे कोई बच्चे, नौजवान बच्चे जो नशे के आदी हैं, गुटखे के आदी हैं, सिगरेट के आदी हैं, फ़ैशन के तौर पे भी एक इस्तेमाल करते हों, तो फ़ैशन भी, जब डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई एक सिगरेट का एक कश भी जो है 10 सिगरेट पीने के बराबर जो है इंसान की सेहत पे असर करता है, तो लिहाजा हमें इससे बचना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हर नशा आवर चीज़ से बचने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं इन दोनों डॉक्टर साहिबीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। जब उन्होंने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाले और इतने उन ज़रीन मशवरे हमारे लिए दिए, तो फिर हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इन मशवरों को
लेकर हम अपने सोसाइटी में, हमारे माशरे में इसको अमल करने के लिए हम जहाँ तक हो सके कोशिश करें, और हम ये कोशिश करें कि इस बात को हम 1 से 10 को 20 को इस बातों में तकसीम करके इनकी कोशिश को हम कामयाब बनाएं। अगर ये माशरा, अगर हम इसको आगे बढ़ाते रहें तो इंशाअल्लाह जैसा खतीर साहब की कोशिश है कि हमारे यहाँ से नशावर चीज़ों को बीदर से निकालें, इंशाअल्लाह वक्त ज़रूर आएगा, मगर इसके लिए हम सब मेहनत करना है और कोशिश भी करना है। जज़ाकल्लाह खैर।